Good morning, students. Today we'll start our next chapter, chapter number 7th, that is about poverty. So, in this chapter, we'll discuss about who are the poor and how we will measure their status of poverty, and what are the different causes behind this poverty, and what are the steps the government is taking, and what would be the measures or steps the government could take. So, let's start. Who are poor or what is poverty? So basically, poverty is a state or a condition in which the person or a person is not able to fulfill his or her basic needs or the minimum needs. Okay. सो पॉवर्टी या गरीबी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेट या स्थिति है, सिचुएशन है, जिसमें एक पर्सन अपनी बेसिक या मिनिमम नीड्स को फुलफिल करने में अनेबल होता है. सो वी कैन से द इनेबिलिटी टू फुलफिल basic or minimum needs of life is called poverty. Okay, and a person who is unable to fulfill his or her basic needs will be called poor. Okay, the person will be called poor. And poverty is a state or a condition. Poverty is defined in terms of a state or a condition or a situation. Okay, it is a situation in which the person is unable to fulfill his or her basic needs. Okay, uh, it might be possible that that state or situation is not permanent for that person or may remain permanent. ओके, मीन्स एक स्टेट और सिचुएशन है पॉवर्टी जो किसी पर्सन के लिए परमानेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. ओके, तो दैट स्टेट इन विच ही इज अनेबल टू फुलफिल द बेसिक और मिनिमम नीड्स ऑफ लाइफ, दैट स्टेट इज पॉवर्टी. वो गरीबी की स्थिति है उसके लिए. एंड अ पर्सन विल बी कॉल्ड poor if he or she is not able to fulfill his or her basic needs. And we all know that basic needs are generally considered as जनरली हम फूड शेल्टर क्लोथ को ही बेसिक नीड्स मानते हैं, बट इकोनॉमिक्स में हम कुछ सर्टेन टर्म्स और ऐड कर देते हैं बेसिक या मिनिमम नीड्स ऑफ लाइफ में. दीज आर फूड शेल्टर क्लोथ्स, एजुकेशन एंड हेल्थ. ओके, इफ द पर्सन इज नॉट एबल to fulfill his food consumption requirement, his shelter requirement, his clothes requirement, if he is not able to get educational facilities for him either or for his children, and is not able to avail health facilities, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं या जो एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनको अवेल नहीं कर पाता, इसलिए वो पुअर है. नो, द बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ जो वो अवेल नहीं कर पाता है तो उसको हम पुअर कहेंगे. हालांकि कुछ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रही है, बट दीज आर जनरली बेयर द मेडिकल फैसिलिटीज़ ओनली. कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ जनरल ट्रीटमेंट के लिए हमें उन फैसिलिटीज़ को अवेल करना है. लाइक कुछ इलनेस हैं जो सीवियर तो नहीं है, एक्यूट इलनेस हैं, लेकिन उनको ट्रीट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं. ठीक है, एंड उन ट्रीटमेंट को लेके गवर्नमेंट जो है कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जिनमें वो एक्सेसिबल नहीं होती मेडिकल फैसिलिटीज़, एंड दूसरी मेडिकल लाइक प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ को वो अवेल नहीं कर पाते हैं या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो दैट इज़ वो पुअर होंगे और इनका डायरेक्ट जो इम्पेक्ट है उनकी हेल्थ पे हमें देखने को मिलेगा. सो द फर्स्ट थ्री आर कॉमन, फूड शेल्टर क्लोथ्स, and the last two are added on the basis of economic point of view, and the last two, education and health, directly impacts or affects the health and efficiency of the people. Okay, because we are talking about poverty in economics, not general poverty. We are not talking about the general poverty. We are measuring the state of poverty, and economics, to measure the state of economic poverty or to poverty in economics, we need some parameters on which we can measure these poverty situations or condition. For these parameters, we need some certain terms or strategic terms which we will discuss later on. So for this we have added education and health facilities or and indicators to measure the poverty. And education directly affects the efficiency level, and health जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनकी एबिलिटी टू परफॉर्म जो है उसको अफेक्ट करता है. तो मींस अगर हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्टली उनका जो एबिलिटी एंड एफिशिएंसी है काम करने की वो अफेक्ट होगी. सो लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी ड्यू टू पॉवर्टी. अगर पुअर हैं तो उनका जो हेल्थ है वो भी
बेटर नहीं होगा हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेल ना कर पाने की वजह से। जो उनका हेल्थ कंडीशंस है वो सीवियर हो सकती हैं, एक्यूट हो सकती हैं, एंड दे विल बी और दे वुड बी लेस एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। ओके, इसका रिजल्ट द इम्पैक्ट ऑफ bad health and low efficiency will be seen on their level of income. Okay, if they are unhealthy or if they are not so much efficient or if they are inefficient, so they will be able to earn less income or unable to earn income। या तो उनको काम मिलेगा ही नहीं, ठीक है, या फिर काम कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल अनहेल्दी हैं, बीमार ही रहते हैं, ठीक है, they are not able to work or they are not able to perform any job। in that case they will not be able to earn a good income, or maybe they are earning very low income, or they are not earning any income because if they are not getting any job। so this low income will create a vicious cycle, may create, not will create every time। हर टाइम तो नहीं क्रिएट करेगी या हर किसी के लिए तो नहीं क्रिएट करेगी, बट for some it may create a vicious cycle of poverty। okay, vicious cycle means endless, which cannot or which will not end at any point of time। that vicious cycle will be created or can be created by this point, loss of health and efficiency। if they are not earning or earning very low income, that point may create a vicious cycle of poverty। vicious cycle means endless, जिसका कोई end नहीं है, and vicious cycle of poverty means the poverty which lasts or remain generation after generation, means generation to generation पुअर ही, उनकी काफ़ी generations या काफ़ी जो लंबी generations तक वो फैमिली जो है पुअर ही रहेगी, क्योंकि पेरेंट्स पुअर थे, वो अपने बच्चों को जो है बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं दे पाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पाए। फर्दर वो जो बच्चे थे वो इनएफिशिएंट रहे, इनकैपेबल रहे। देन उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, क्योंकि वो बच्चे भी पुअर रहे, बीइंग पेरेंट्स वो भी पुअर हो जाएंगे। देन उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी पुअर होगी क्योंकि उनके पेरेंट्स पुअर है। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है वो चलता जाएगा। तो इट मे क्रिएट अ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ये जो लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी है, जो कि पॉवर्टी की कंडीशन की वजह से अवेल नहीं कर पाए और लूज़ कर गए अपनी हेल्थ और एफिशिएंसी को। तो जो पॉवर्टी है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रिवेल कर सकती है। The next concept is there are two types of poverty generally we discuss about। one is relative poverty and other one is absolute poverty। so first of all, if we talk about relative poverty, as the name suggests, relative, that means uh, it will consider the poverty in relation to other। okay, that means we are comparing either two states or a person with other person। okay, we are comparing two or more than two persons on their economic conditions, or we are comparing two countries or states on their economic conditions। okay, if one is poor in comparison to other, this will be called relative poverty। if one person is poor in a society in comparison to the other person or other persons, then that person will be called relatively poor। okay, उस person को हम relatively poor कहेंगे, वो दूसरों के मुकाबले पुअर है। ओके, सभी पुअर नहीं है, या वो सिर्फ पुअर नहीं है, वो दूसरों के मुकाबले पुअर है। ओके, जब हम कंपेयर करते हैं किसी एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन या दूसरे पर्सन्स के साथ, या किसी एक कंट्री को दूसरी कंट्रीज के साथ, that comparison will result into relative poverty। okay, so what is relative poverty? it is the condition in which people lack the minimum amount of income needed in order to maintain the average standard of living in the society in which they live। okay, so we are again comparing, see point, average stand to maintain the average standard of living in a society। that means जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वहाँ पे जो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको मेंटेन करने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम चाहिए। ओके, मींस एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि बाकी लोग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अफोर्ड कर रहे हैं, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे आर लीडिंग, जिस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो लीड कर रहे हैं, ओके, उस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, ओके, उतना अमाउंट ऑफ मनी
उस पर्सन के पास नहीं है तो उस पर्सन को हम रिलेटिवली पुअर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हम एक लोकेलिटी में, एक स्ट्रीट में एंटर होते हैं। उस स्ट्रीट में हमने क्या देखा कि सभी जो घर हैं वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उनमें से एक घर, उसी गली में या उसी स्ट्रीट में एक घर जो है वो काफ़ी मीन्स बहुत ज़्यादा पुराना है, या फिर उतनी हम कह के देख 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 के कह सकते हैं, या फिर असिस कर सकते हैं कि वो घर जो है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनमें उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनका जो मटेरियल है, या फिर उसकी जो लुक है, वो टेवर जो भी हम देख के कि वो जो घर है उतना अच्छा नहीं है, या फिर ये लोग जो है पुअर हैं। ओके, तो बाकी सभी घर अच्छे थे, लेकिन एक घर को देख के हमने कहा ये घर जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, या फिर ये लोग उतने ज़्यादा रिच नहीं होंगे। ओके, उस घर की कंडीशन को हमने देख के बता दिया। सो दैट इज़ द पॉइंट कि हाँ, जब हम बाकियों के साथ किसी एक को कंपेयर करते हैं, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, वो पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं। ओके, शेल्टर हो सकता है, फूड हो सकता है, क्लोथ्स हो सकते हैं। ओके, उनके बेसिस पे हम उनको कंपेयर करते हैं, तो वहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट आता है पॉवर्टी का, दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। दैट मीन्स वन पर्सन इज रिलेटिवली और कंपैरेटिवली पुअर देन अदर्स। वो पुअर तो है, ठीक है, हमें नहीं मतलब उस चीज़ से। मीन्स ऐसा भी हो सकता है अ पर्सन मे नॉट बी पुअर। ओके, मतलब वो अपनी बेसिक नीड्स तो फुलफिल कर पा रहा है। ओके, फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेल कर पा रहा है, लेकिन उस लेवल की या उस स्टैंडर्ड की अचीव या अवेल नहीं कर पा रहा है जितना उसके जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो अवेल कर पाते हैं। दैट मीन्स वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, वो अच्छा फूड मीन्स जो है कंज्यूम करते हैं। ओके, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं, लेकिन वो पर्सन जो है फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेल तो करता है, लेकिन उस लेवल या उस स्टैंडर्ड की नहीं कर पाता है जितना कि बाकी उस सोसाइटी के दूसरे लोग कर पाते हैं। ओके, तो पर्सन पुअर तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर पाता है, लेकिन वो रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दूसरों के मुकाबले वो है पुअर कहा जाएगा। ओके, दैट इज़ रिलेटिव पॉवर्टी। एक्चुअली इसको हम पॉवर्टी में कंसिडर नहीं करते हैं, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए कहा गया है कि दूसरों के मुकाबले वो पुअर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन अर्न्स ₹20,000 एंड द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज 30,000। ओके, एक पर्सन एक कंट्री में रह के 20,000 अर्न कर रहा है। हालांकि हम कहें कि अगर पॉवर्टी लाइन की हम बात करें कि एक पर्सन को अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए 15,000, ओके, 15K या 15,000 सफिशेंट है उस कंट्री में, टोटल एक्सपेंडिचर्स को देखा जाए तो, और वो पर्सन जो है 20,000 अर्न कर रहा है, ठीक है, एंड अदर्स इन दैट कंट्री और सोसाइटी एवरेज जो है उनकी 30,000 है। मीन्स अदर्स आर अर्निंग 30,000, मीन्स वो बहुत ज़्यादा रिच होंगे, मे बी एक डेवलप्ड कंट्री हो सकती है। 15,000 बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट है, बट द पर्सन इज अर्निंग 20,000, दैट मीन्स पर्सन एब्सोल्युटली पुअर तो नहीं है। ओके, लेकिन दूसरों के मुकाबले वो पुअर है क्योंकि वो दूसरों से कम अर्न कर पा रहा है। दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। Okay, so we can say that it compares the economic status of a person with that of the society and assess his or her poverty status in relation to each other. Okay, हम कह रहे हैं कि दूसरों के मुकाबले कंपेयर करने के लिए हम उनकी कुछ कंडीशंस को कंसिडर करते हैं। ओके, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे। सो दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। The next one is absolute poverty. Absolute poverty and poverty are the same concept, so same point. Means जो हमने poverty का definition पढ़ा, whatever we have discussed about the definitions of in the definitions of the poverty, it is exactly like that. Absolute poverty and poverty are the same. Okay, so it is the condition when a person does not have sufficient amount of money to fulfill his basic needs. Okay, in this condition the person does not have the sufficient amount of money. Okay, we are not comparing whether he is having less or more than others. हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि वो दूसरों से कम या ज़्यादा मनी अर्न करता है, हम ये असेस कर रहे हैं क्या उसके पास इतना मनी है कि वो अपनी अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए एटलीस्ट। ओके, सो इट इज़ द कंडीशन जो एक पर्सन की एबिलिटी को असेस करता है, क्या वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाएगा या नहीं। अगर नहीं कर पाता, इतना मनी अर्न नहीं कर पाता है कि वो बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए अपनी, तो उस केस में वो पर्सन पुअर होगा। ओके, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज एब्सोल्युटली पुअर। ओके,
In India, the concept of poverty and absolute poverty are same. Okay, we can say that India is considering absolute poverty as poverty. हम इंडिया में absolute poverty को ही poverty मान के चलते हैं. Relative poverty का concept हम adopt नहीं किए हैं. हम comparison करके उनको assess नहीं करते हैं. हाँ, जनरली कंपैरिजन होता है. रिलेटिव पॉवर्टी हमने अडॉप्ट मींस गवर्नमेंट ने जो है रिलेटिव पॉवर्टी को एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, मेनली डेवलप्ड कंट्रीज जो है रिलेटिव पॉवर्टी कंसीडर करती हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी इतनी ज़्यादा नहीं है. ऑलमोस्ट ऑल द पीपल आर अर्निंग मोर देन दर बेसिक रिक्वायरमेंट्स. ओके, अपनी बेसिक नीड्स से ज़्यादा ही वो अर्न कर पाते हैं. सफिशेंट मनी, अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर पाते हैं. वहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी है कि कितने पर्सन ज़्यादा मीन्स अर्न करते हैं और कितने कम. ओके, 17% of the population in India live in absolute poverty according to the data of 2019. जो 17% of population है वो below poverty line है. मीन्स इंडिया में जो है अपनी पॉपुलेशन का है, टोटल पॉपुलेशन का 17% जो लोग हैं वो इतना भी अर्न नहीं कर पाते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाएँ. एंड 2011 में ये काफ़ी ज़्यादा था, 22% के अराउंड था. एंड इट वॉज नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स poor people. That means half of the world's poor people live in India. Okay, nearly or approximately जो total population बिलो पॉवर्टी लाइन है वर्ल्ड में. ओके, या टोटल पुअर पीपल इन वर्ल्ड, उनके नियर अबाउट हाफ जो है 50% जो है इंडिया में रहते हैं. इतनी ज़्यादा पॉवर्टी इंडिया में है. हालांकि अभी धीरे धीरे हम जो है कम करते जा रहे हैं इसको, लेकिन 2011 में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था. नियरली 50% जो थे वो पुअर इंडिया में ही रह रहे थे. या इंडिया में टोटल वर्ल्ड की जो पॉवर्टी की पॉपुलेशन है, टोटल पुअर पीपल हैं वर्ल्ड में, उनका 50% इंडिया में था. रिलेटिवली हमने उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे कम किया है. 22 to 17% हम लेके आए हैं 8 ईयर्स में. लास्ट 8 ईयर्स में हमने रिकवर किया है. The next two concepts, one is chronic poor and other one is churning poor. Now what are these? Chronic poor हम किनको कहेंगे और churning poor हम किनको कहेंगे? Chronic poor are the people who never come out of the poverty. Chronic poor वो persons हैं जो कभी भी poverty से overcome कर ही नहीं पाते हैं. That means they always remain below poverty line. वो BPLs ही रहते हैं. वो means उनकी income कभी या वो इतना ज़्यादा earn नहीं कर पाते हैं कि अपनी basic needs या minimum needs को fulfill कर पाए. इतना sufficient amount of money जो है वो earn नहीं कर पाते हैं. Okay, so these people are considered as chronic poor. द अदर वन इज चर्निंग पुअर. लाइक क्रॉनिक पुअर हम कह सकते हैं जो बैगर्स हैं. ओके, से रैग पिकर्स हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और द वन हु आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड, वो पर्सनस जो है क्रॉनिक पुअर हो सकते हैं. ठीक है, जिनके पास जो है काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जिनसे उनको अर्निंग जो है बेयर सब्सिस्टेंसेस भी अर्न नहीं होते हैं, मिनिमम अमाउंट भी अर्न नहीं कर पाते हैं. The other one is churning poor. Churning poor means those who revolve around the poverty line. जो poverty line के ऊपर और नीचे जो है move करते हैं. The people who move in and out of poverty line, these are called churning poor. Okay, churning poor को हम जो ग्राफ है इस तरीके से दिखाते हैं. If this is poverty line, अगर ये हमारी poverty line है, ठीक है, this is income. On OY axis हम income दिखाते हैं. So if it is 5000, पॉवर्टी लाइन हमने 5000 फिक्स की है या 1500 फिक्स की है, वॉट एवर, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है. ओके, सो समटाइम्स अ पर्सन मे अर्न 4000, समटाइम्स 5500, समटाइम्स 10000, समटाइम्स 4500, लाइक दैट. इस तरीके से जो है ये हमारा चर्निंग पुअर्स का जो स्टेटस है वो दिखता है हमने. ओके, मीन्स कभी जो है वो 5000 से कम अर्न कर पा रहे हैं, कभी 5000 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज चर्निंग पॉवर्टी. ये कौन होते हैं? ये होते हैं मेनली सीजनल वर्कर्स. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ में इंगेज्ड हैं, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस में वो इंगेज्ड हैं जो सीजनल नेचर का है. तो कभी उनको काम मिल जाता है, बहुत अच्छा काम होता है, तो उनको इनकम ज़्यादा होती है, और कभी कभी उनको काम मिलता ही नहीं है. ओके, दे रिमेन विद no work, or they are left with no work or no job to do. That's why they are not earning, so they remain poor. And sometimes their business or their occupation may go up and they are earning a very good income. That's why they are above poverty line. So this is churning poor. वो poor और non poor के बीच में revolve करते हैं. ठीक है, the next one is poverty line.
what is poverty line and how does it fixed और how is it being fixed by the governments, ये कैसे फिक्स होती है और ये होती क्या है। पॉवर्टी लाइन को मेनली हम एक कट ऑफ रेट कहते हैं, बिकॉज ये पूरी सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, द वन हु आर पुअर्स एंड द वन हु आर नॉन पुअर्स, अदर्स दोज हु आर नॉन पुअर्स। तो पूरी सोसाइटी को पुअर्स और नॉन पुअर्स में जो है डिवाइड करती है या बाइफरकेट करती है, वो लाइन जो है वो कट ऑफ रेट जो है वो हमारी पॉवर्टी लाइन होती है। ओके, एंड इट इज़ डिटरमिन्ड ऑन बेसिस ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ओके, प्रति व्यक्ति जो खर्चा है मंथली, उसके बेसिस पे जो है पर पॉवर्टी लाइन हम डिटरमाइन करते हैं। मींस एवरेज बेसिस पे एक पर्सन कितना खर्च करेगा अपनी मिनिमम नीड्स को या बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए मंथली, उस बेसिस पे हम पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करते हैं। ओके, एंड इन इंडिया द करंट पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन तेंदुलकर कमेटी। ओके, डिफरेंट कमिटीज़ ओवर द ईयर्स जो है बनाई गई पॉवर्टी लाइन को रिवाइज करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए। तो जो अभी एट प्रेजेंट जो हम पॉवर्टी लाइन फॉलो करते हैं या यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन तेंदुलकर कमेटी। ये डिफरेंट कमेटीज़ थी जिन्होंने अलग अलग मेजर्स अडॉप्ट किए थे, किसी ने कैलोरी नॉर्म्स अडॉप्ट किया था। सबसे पहले जो इंडिया में पॉवर्टी लाइन थी वो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मींस जेल में जो कैदी रहते हैं, प्रिजनर्स हैं, उनके ऊपर जितना खर्चा किया जाता है उनके बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसके ऊपर बेस्ड पॉवर्टी लाइन हमने इनिशियली सबसे पहले अडॉप्ट की थी। दादा भाई नौरोजी ने उसको फ्रेम किया था। तो इस तरीके से अलग अलग कमिटीज़ ने अलग अलग मेजर्स अडॉप्ट किए और अलग अलग रूल्स एंड फ्रेमवर्क्स हमें दिए। तो एट प्रेजेंट हम तेंदुलकर कमेटी को फॉलो करते हैं और वो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बेस्ड मेजर को अडॉप्ट करती है। ओके, एंड इन इंडिया एट प्रेजेंट द डेली एक्सपेंडिचर्स of a person in rural area is fixed at rupees 27.2. That means a person who is spending 27.2 in rural areas in a day, the person will not be considered as poor, and in urban it is rupees 33.3. ओके, ये रिवाइज होती रहती है इन्फ्लेशनरी कंडीशंस के बेसिस पे। ओके, मे बी इन एवरी ईयर और कपल ऑफ ईयर्स इनको रिवाइज किया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, महंगाई के ऊपर जो है ये बेस्ड होती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज हेड काउंट रेशियो और HCR. व्हाट इज इट? द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, जो टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज है, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। जैसे हमने कहा इंडिया में 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग 17% पीपल जो है वो, या 17% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो 17% ऑफ द पॉपुलेशन इज below poverty line, that is considered as head count ratio. Means out for example, अगर हम example लें, out of per 1000 how many are below poverty line, और out of 100 how many are below poverty line. तो 17% के according every 17 persons of every 100 are BPL. इंडिया में हर 100 पे 17% या हर 100 में 17% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। सो दिस इज हेड काउंट रेशियो, आउट ऑफ 100 हाउ मेनी आर, और आउट ऑफ 1000 हाउ मेनी आर बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट इज हेड काउंट रेशियो। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वाई इज द पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड ऑन एक्सपेंडिचर बेसिस। जो हमारी पॉवर्टी लाइन है उसको हम एक्सपेंडिचर, अभी हमने पढ़ा कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन हम फॉलो करते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर बेस्ड क्यों है? दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, दो मेजर्स हो सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ अ पर्सन, कि एक पर्सन मंथली कितना अर्न करता है। अगर एक पर्सन फॉर एग्जांपल 10,000 अर्न करता है तो हम कहेंगे कि वो पुअर नहीं है, 8,000 अर्न करता है तो पुअर है, या 9,000 अर्न करता है तो पुअर है। ओके, तो इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन भी फॉलो की जा सकती है, बट हम एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन फॉलो करते हैं इंडिया में। क्यों? रीज़न बीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ हाईली इम्बैलेंस्ड। ओके, हमें पता है कि अनइक्वल है इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है वो, किसी की इनकम बहुत कम है और किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है। एंड समटाइम्स ड्यू टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर द डेटा ऑफ इनकम इज़ नॉट अवेलेबल एक्यूरेटली, जो एक्यूरेट डेटा है इनकम का लोगों का वो अवेलेबल भी नहीं होता है। ठीक है, लोग छुपाते हैं अपनी इनकम को, और दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से उनके कुछ रिकॉर्ड्स नहीं होते, लाइक कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो कुछ ऐसे वेंडर्स हैं, ठीक है, जो कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन तरह की इनकम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस वजह से इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन हम फॉलो नहीं करते हैं। सेकेंड वन इज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि इनकम सिर्फ परचेजिंग पावर दिखाती है, मीन्स एबिलिटी और कैपेसिटी टू परचेज और बाय ही इनकम से पता चलता है। क्या उस पर्सन ने अपनी इनकम का उतना प्रोपोर्शन खर्च किया अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ये हमें नहीं पता चलता। मीन्स मेरी इनकम इतनी है कि मैं एक एसी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन क्या एक्चुअली मैंने एसी खरीदा, ये मेरी इनकम नहीं बताएगी, ये मेरा एक्सपेंडिचर बताएगा कि किसी मंथ में मैंने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है, तो इसका मतलब मैंने कुछ ज़रूरी या फिर कुछ इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर नीड्स हैं उनको फुलफ़िल किया होगा, या फिर कुछ लाइक एक्स्ट्रा नीड्स फुलफ़िल की होंगी, इसलिए मेरी जो स्पेंडिंग है एक्सपेंडिचर है उस मंथ ज़्यादा हो गई है। तो एक्सपेंडिचर हमें बताता है एक्चुअल में नीड्स को फुलफ़िल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इनकम सिर्फ परचेजिंग पावर को दिखाती है। The next one is expenditure level shows the satisfaction of needs. We have already discussed कि सिर्फ expenditure level ही बताता है कि कितना level of needs जो है satisfy हुई है और कितनी नहीं हुई है। Whether the person is actually satisfying his or her basic needs or not, ये expenditure बताता है, उसके expenditure pattern से पता चलता है, income नहीं बताती है। Okay, so these were the points related to the poverty. Next we will discuss about the various trends in poverty line.